So, Jain student, as in the previous class, I explained you about the next chapter, that is arithmetic progressions. So, in the same chapter, I have started the first topic, that is sequence. So, sequence के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. Now come to the main topic, that is arithmetic progression. Arithmetic progression. What do you mean by arithmetic progressions? Arithmetic progressions होता क्या है? See, as I told you in the previous class that sequence is a ordering of digits in a specific manner, right? मैं बताया था कल कि जो सीक्वेंस होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं. देयर शुड बी सम रूल्स, है ना. उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं, है ना. उसके पहले मैंने प्रोग्रेशन भी बताया था. प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि डिजिट्स जो हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. देयर इज नो एंड ऑफ द सीक्वेंस एंड देयर मे बी एंड बट वी कैन नॉट जज, है ना. वी कैन नॉट डिसाइड. बट in arithmetic progressions, the sequence is that sequence in which the difference between two consecutive digits will be same, है ना. देखिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में होगी, because this is the new topic for you. Before this you have not listened about arithmetic progression, right? So arithmetic progression is a sequence, right? It is a sequence in which there is common difference between two consecutive digits, है ना. Common difference must be equal. That common difference must be equal. So arithmetic progression, it is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, right? Except the first term. Suppose 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on, right? This is an example. ये एग्जाम्पल है. मैंने क्या बोला? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, each next term will be get by adding some fixed number, adding some fixed digit, है ना. जैसे 2 is the first number in the sequence, so इसके जस्ट बाद का जो डिजिट है वो ऑब्टेन करने के लिए हम इसमें क्या ऐड किए हैं? +2 ऐड किए हैं, करेक्ट. नाउ फॉर गेटिंग द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर 4 वी हैव एडेड +2. 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and so on, right? So this is known as common difference. इसी को हम क्या बोलते हैं? Common difference. And this is denoted by small d. And the first number in the sequence, that is 2, it is known as first term. This is first term and it is denoted by small a, right? So an arithmetic progression is again a sequence in which the next term is obtained by adding some fixed digit in the previous one, है ना. previous one में हम कोई fixed value ऐड करके next term obtain करते हैं. 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, right? तो प्रीवियस वन में कोई फिक्स वैल्यू ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर रहे हैं एंड दैट फिक्स्ड वैल्यू इज कांस्टेंट, है ना. क्या होगा? कांस्टेंट. फिक्स है तो कांस्टेंट होगा, राइट. सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें कि हम लोग डिजिट्स को अरेंज करते हैं और डिजिट इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसमें कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो उसके जस्ट प्रीसीड, उसके जो सक्सीडिंग
डिजिट्स होंगे वो किसी फिक्स वैल्यू को ऐड करने पर ही मिलते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि सक्सीडिंग टर्म यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 के सक्सीडिंग 6 है, 6 is preceded by 8, 8 is preceded by 10, 10 is preceded by 12, and 12 is succeeding 10, 10 is succeeding 8, 8 is succeeding 6. तो जो succeeding terms हैं that is obtained by adding some fixed value in the previous one, है ना। तो 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, right? So this is known as common difference, and this one is the first term of the sequence. I hope you all understand what is arithmetic progression. अब हम बात करते हैं common difference क्या होता है। तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, केवल common difference की बात करते हैं। Common difference कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज द फिक्स्ड नंबर। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड नंबर, एंड इट इज नाउ जो क्लियर है, कॉमन होगा, दिस इज कॉमन इन ऑल टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस, 4 minus 2, 2, 6 minus 4, 2, 8 minus 6, 2, 10 minus 8, 2, 12 minus 10, 2. So common difference is a fixed term, fixed number which is obtained by subtracting two consecutive terms in a sequence. किसी भी सीक्वेंस की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को का डिफरेंस निकालने पे जो भी वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, राइट। तो कॉमन डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, वॉट एवर वी ऑब्टेन दैट फिक्स वैल्यू इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12, देखिए ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस का यूज करते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस देखिए होता क्या है, सब्ट्रैक्टिंग, फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। देखिए 4 minus 2 we will get 2, 6 minus 4 2. What we are finding out here, we are finding out difference between two consecutive terms। यहां पर हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से होंगे? 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, these all are two consecutive terms। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? 4 minus 2, 6 minus 4, 8 minus 6, 10 minus 8, 12 minus 10, it will be 2, 2, 2, right? So difference between two consecutive terms, दो consecutive terms के बीच का जो difference आ रहा है वो क्या आ रहा है? आप देख रहे होंगे 2, 2, 2, 2, 2. So it is difference between two consecutive terms, but the difference between two consecutive terms is not different. वो क्या अलग अलग है? No, it is common. It is common for all. So it is known as common difference. इसलिए हम इन सभी को क्या बोलते हैं? common difference। common difference, and it is denoted by small d, correct? So common difference can be defined as the fixed value which is obtained from subtracting two consecutive terms। दो consecutive term को subtract करने पर whatever we get that is known as common difference, and it is denoted by small d, right? I hope you all understand what is common difference, right? So common difference हमने बता दिया। अब बात करते हैं first term क्या होता है। तो मैंने बताया कि first term जो होता है, the first term is the
फर्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस का जो पहली वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म will be 2 and it is denoted by a, small a, right? One thing more, the common difference, right? The common difference can be positive, can be negative also, right? The common difference can be positive or negative. It may be zero also, right? Common difference should be positive or negative or zero, right? So common difference, I hope you all understand what is common difference. Common difference is the difference between two consecutive terms. दो consecutive terms के बीच का जो difference होता है 4 minus 2, 6 minus 4, 8 minus 6, 10 minus 8, 12 minus 10. So common difference is the difference between two consecutive terms. दो consecutive terms के बीच का difference common difference कहलाएगा. Now come to the sequence. तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक सीक्वेंस जो होता है हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, राइट? दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड nth term. So first term is represented by A1, second term A2, third term A3, fourth term A4 and so on A5, right? See, the common difference B will be obtained as A2 minus A1. It will be equal to A3 minus A2. It must be equal to A4 minus A3 and equal to A5 minus A4 and is also equal to an minus 1. लास्ट वन के पहले क्या आएगा? an minus 1, है ना? तो इन दोनों का भी डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. So in the same way, common difference must be equal of the difference of the two consecutive numbers in the sequence, right? So this is common difference and this is in the same way we represent the sequence. Now one thing we have to understand that अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ एपी. एपी का जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो व्हाट इज जनरल फॉर्म? देखिए जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन. हाउ डू वी रिप्रेजेंट एपी? एपी को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? तो रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. मैंने पहले ही स्टार्ट में बता दिया कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, राइट? अब देखिए मैंने क्या बोला कि द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस, है ना? जो अगला टर्म होता है वो कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद ही मिलता है. तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा? ए प्लस कॉमन डिफरेंस इज डी, करेक्ट? इसके जस्ट आगे का जो टर्म होगा वो कैसे मिलेगा? ए प्लस डी प्लस डी यानी 2d. नेक्स्ट टर्म विल बी ए प्लस 3d, देन ए प्लस 4d and so on, करेक्ट? एंड so on. अच्छा देखिए अभी मैंने बोला कि इस तरीके से हमें क्या मिलता है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, है ना? तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से. फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है, ठीक है? हमको नेक्स्ट टर्म अगर गेन करना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं. इफ द फर्स्ट टर्म इज ए, द नेक्स्ट टर्म विल बी ए प्लस डी. द third next term will be a plus 2d. Next term will be a plus 3d and then a plus 4d and so on. इस तरीके से हम जनरल फॉर्म ऑफ AP ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? I hope you all understand what I am trying to explain you, that general form of AP can be obtained like this. Now I am going to read out some important notes and I will explain also. See, first term is there are only finite number of terms. Such AP is called finite AP.
राइट। एग्जाम्पल समझते हैं, व्हाट इज फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी की बात करते हैं। तो फाइनाइट एपी की मैंने डेफिनेशन पढ़ दी कि व्हाट इज फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी इज दैट एपी, फाइनाइट एपी is that AP in which the number of terms are finite. Number of terms or number of terms digits are finite. Number of terms are finite. अगर number of terms फाइनाइट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जस्ट इट, राइट। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहां पर देखिए 2 का डिफरेंस है ना। इन ऑल केसेस देयर इज डिफरेंस ऑफ 2। Each next term is obtained by adding 2 in the previous one. Previous one में 2 obtain करके हम add करके हम next term gain कर रहे हैं. So in the same way we can say that the number of term in the sequence is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are total 7 terms in the given sequence. इस sequence में कितने terms हैं? 7 terms हैं. So it will be a finite AP. ये क्या होगा? Finite AP होगा, right? So this is the first AP, that is finite AP. And if the number of terms is infinite AP. What is infinite AP? If the number of terms are infinite, this is known as infinite AP. एग्जाम्पल देखते हैं कि infinite AP क्या होती है. Suppose 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Correct? Here you cannot count the number of terms in the given sequence. क्या आप काउंट कर सकते हैं कितने टर्म्स हैं? Only 2, 4, 6, 8, 10, 12, right? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and continuously increase हो रहा है. तो कितना increase हो रहा है? We don't know, right? So it will be an infinite AP. Infinite AP क्यों होगा? Because we cannot count the number of terms in the sequence, right? Now I'm going to solve few examples. See, कुछ examples discuss करते हैं. I hope you all understand what is AP, what is first term, what is common difference, what is finite AP, and what is infinite AP. Now come to some numericals. Write first 4 terms of the AP. First 4 terms. First 4 terms of AP. है ना? You have to write first 4 terms of AP where A equal to -1 and B equal to A equal to -1 and D equal to 1/2. Right? A equal to -1 and D equal to 1/2. राइट फर्स्ट 4 टर्म. मैंने अभी बताया कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो और हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करते हैं? सिंपली A plus B, A plus 2D, A plus 3D. This is the first 4 term of the AP. AP के first 4 terms ये होंगे क्या? A plus D, A plus 2D, A plus 3D. So this is first 4 term of AP. ये first 4 terms है. अब first 4 terms निकालेंगे कैसे? A की वैल्यू हमको पता है -1. A plus D, -1 में ऐड करना है D, this 1/2. Then A की वैल्यू क्या है? -1. 2, D की वैल्यू क्या है? 1/2. कॉमा A की वैल्यू क्या है? -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू क्या है? 1/2. हमने सिंपली D और A की वैल्यू पुट कर दी और हमें मिल गया -1 प्लस 1/2. सो थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो -1 कॉमा इसको हम लोग ऐड करेंगे 1/2 -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1/2. करेक्ट? -1 1/2. करेक्ट? नाउ नेक्स्ट वन इज
जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 here -1 + 1 0 here 3/2 3/2 देखिए 3/2 ये बन जाएगा और -1 इट विल बिकम ऐसे लेंगे 3 - 2/2 इट विल बी 1/2 here 1/2 so first four term of the sequence will be -1 -1/2 0 and last one is 1/2 this is first four term of sequence right next question write the first term and common difference है ना फर्स्ट टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है देखते हैं राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है सीक्वेंस गिवन है -5 -1 3 7 -1 3 7 and so on. This is an example, -5, -1, 3, 7 and so on. What is the first term of the sequence? इसका first term क्या होगा? First term represented by A and will be -5. Common difference is represented by D and will be difference of two consecutive number है ना? देखिए -1 -5 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हैं? -5 एंड -1 इनके बीच का डिफरेंस है ना डिफरेंस कैसे निकलेगा? -1 -5 इट विल बिकम -1 + 5 5 - 1 बिकम 4 है ना. अच्छा थोड़ा चेक भी करते हैं क्या ये सीक्वेंस एपी है. अभी तो हमको कंफर्म भी नहीं है ना कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं. तो सीक्वेंस को एपी है कि नहीं चेक करना पड़ेगा. तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सीक्वेंस इज AP or not. For checking it, you just have to perform to find the common difference. That is, देखिए यहाँ पे -1 -5 किया तो 4 आ गया. 3 -1 कितना आएगा? 3 + 1 this will be 4. 7 - 3 4. देखिए कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है ना. इट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी. वैसे क्वेश्चन ने बोल दिया था कि ये एक एपी है. इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म. तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. हमें क्या पता चल जाएगा? कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक इफ इट इज एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सिंपली देखिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 8 16 एंड सो ऑन राइट. यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है 2 4 8 16 एंड सो ऑन. यू हैव टू चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट. क्या ये एपी में है कि नहीं? तो मैंने पहले ही बोल दिया कि एपी में कोई सीक्वेंस तभी होता है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो. देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? 4 - 2 will be 2. 8 - 4 will be 4. 16 - 8 will be 8 right. अगर हम इसको कॉमन डिफरेंस अगर हम इसको डिफरेंस बोलते हैं दिस इज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना. दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 4 8. क्या ये इक्वल है? नो. A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A4 - A3 है ना. ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया. A2 - A1 2 आ रहा है, A3 - A2 4 आ रहा है और A4 - A3 8 आ रहा है. ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है. So it will not be an AP. ये एक AP नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होते हैं तो वो AP नहीं होता है. और जब AP नहीं होगा तो हम इसके आगे के टर्म्स को डिसाइड नहीं कर सकते हैं है ना. बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्ट रूल है ना. हमें रूल पता तो है नहीं तो हम आगे के टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वी कैन नॉट फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस के आगे टर्म्स पता नहीं कर सकते हैं. सो स्टूडेंट
you have to solve all the questions of NCERT regarding whatever topic I explained here, है ना. जो भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया उससे रिगार्डिंग NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस करिए, सॉल्व करिए एंड आस्क क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी क्वेरी, राइट, इन WhatsApp groups, right. So this all for today, right. In the next period, I will explain you about the nth term of an AP. AP का nth term क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.